Hello my dear students, I am your Shakur sir and today we are going to discuss about the economic importance of bryophytes and the classification of bryophytes. As we have discussed already in our previous classes that bryophytes, they are called as amphibians of the plant kingdom because they are the plants which grow on land as well as require water for the process of fertilization. They are the first land plants, but they are not the first successful land plants. We will discuss why they are not first successful land plants, as I have already told you that they do not possess the vascular bundles, the xylem and the phloem like that. And the most important thing is that the dominant phase in the life cycle of bryophytes is gametophytic phase. That is, their plant body is haploid. Haploid plant body is called as gametophyte. So this stage, this phase is called as gametophytic phase. We are having two phases. We know that we are having two phases in the life cycle of bryophytes. One is the dominant haploid gametophytic phase and second is the diploid sporophytic phase that develops from the zygote. And in the today's topic we will focus on economic importance of bryophytes, as well as we will try to find out the various classes, the classification of bryophytes. So as far as the economic importance of bryophytes is concerned, bryophytes जो है, they have more ecological importance as compared to the economic importance. Bryophytes की ज़्यादा ecological importance है in comparison to the economic importance. However, some of the bryophytes act as source of food. They are the source of food and provide food material to some herbivorous mammals. So bryophytes act as source of food for some herbivorous mammals. They act as source of food for some birds, as well as they act as source of food for other animals. So we must remember that bryophytes जो है, they have least economic importance, more ecological importance. This is very important point. Second is that bryophytes जो है, they act as source of food. They provide food material to herbivorous mammals. They provide food material to birds. They provide food material to other animals. And similarly, जो bryophytes है, they are the source of peat. Bryophytes are source of peat. For example, we are having a bryophyte. That bryophyte is known as Sphagnum, and this bryophyte Sphagnum is also commonly known as peat moss. Very important point to remember. Bryophytes जो है, ये हमें peat provide करते हैं. खासकर एक ब्रायोफाइट है, उस ब्रायोफाइट का नाम स्फैग्नम है और इसको हम कॉमनली पीट मॉस इसलिए बोलते हैं कि ये हमें पीट प्रोवाइड करता है. अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस पीट? पीट जो है पार्शियल डिकम्पोज्ड वेजिटेटिव मैटर ऑफ द प्लांट बॉडी जो होता है उसी को हम पीट बोलते हैं. तो पीट इज पार्शियली डिकम्पोज्ड. व्हाट इज दिस पीट? दिस इज पार्शियली डिकम्पोज्ड. दिस इज partially decomposed vegetative material, and it is brownish in color. And has lot of water holding capacity. ये जो पीट है, ये पार्शियली डिकम्पोज्ड वेजिटेटिव मटेरियल है. इसका कलर जो है ब्राउनिश इन कलर है और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है. इट हैज अ लॉट ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. ये जो पीट है, इसको हम यूज करते हैं एज फ्यूल. दिस पीट इज ड्राइड, इट इज यूज्ड
to cook food material. So it is a source of fuel. And second important thing is that, as I have told you, कि स्पीड की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल. इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फ्लावर्स, कट फ्लावर्स एक जगह से दूसरी जगह भेजने हो, या आपको हॉर्टिकल्चरल मटेरियल्स, ग्राफ्ट्स आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजने हो, तो उनको हम सूटेबली पैक करते हैं पीट के अंदर, क्योंकि इस पीट की सलाहियत होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसकी. तो ये उन लिविंग मटेरियल्स को, हॉर्टिकल्चरल मटेरियल्स को, उनकी जो वायबिलिटी है उस वायबिलिटी को खत्म होने नहीं देता है, उनकी वायबिलिटी मेंटेन रखते हैं. इसीलिए हम इसको ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स के लिए यूज करते हैं. तो मैंने आपको अभी तक बताया, ब्रायोफाइट्स जो है दे आर द सोर्स ऑफ फूड, दे प्रोवाइड फूड मटेरियल. मैंने आपको बताया ब्रायोफाइट्स जो है दे आर द सोर्स ऑफ पीट. खासकर मैंने बात की स्फैगनम की. स्फैगनम को हम बोलते ही है पीट मॉस, और द स्फैगनम इज आल्सो कॉल्ड एज बॉग मॉस बिकॉज इट ग्रोज इन बॉग्स. तो अब मसला है ये पीट क्या होता है. पीट जो है ये पार्शियली डिकम्पोज्ड वेजिटेटिव मटेरियल होते हैं. जो वेजिटेटिव बॉडी स्फैगनम की है दैट इज पार्शियली डिकम्पोज्ड, and this partially decomposed vegetative material of sphagnum is called as peat. So we know that this peat जो है ये brownish in color है. इसका कलर जो है ये brown colored होता है, और the notable feature of this peat is that it has a huge water retention or water holding capacity. So this peat is used as fuel when dried, और इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स. आगे बढ़ते हैं. तीसरी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है ब्रायोफाइट्स की वो ये है, तीसरा पॉइंट जो है दैट इज दे एक्ट एज pioneers in ecological succession, or I can express it in other words. उसका मतलब क्या हो गया कि they are the first plants. They are the first plants along with lichens के साथ that colonize the rocks. एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन. इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक बियर एरिया होता है जहां पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है. वहां धीरे धीरे टाइम के साथ हम देखते हैं उसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो है ग्रो होना स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कोई मूवी चलती है, जब मूवी का शुरुआत होता है उसको हम बोलते हैं कास्ट, उसको हम बोलते हैं कास्ट. इसी तरह जब एक इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, जब किसी बियर एरिया में, किसी ऐसे इलाके में जहां पे लाइफ का एग्जिस्ट होना पॉसिबल नहीं होता है, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ वहां पे लाइफ आती है. फिर उसके बाद क्या होता है, जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म जहां वहां पे आती है उनको हम बोलते हैं पायोनियर्स. जैसे मूवी के अंदर कास्ट में जो सेलिब्रिटीज आते हैं, जो हीरोज एक्टर्स आते हैं कास्ट में, इसी तरह पायोनियर्स इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे पहले आते हैं. तो ये जो ब्रायोफाइट्स है ये एक्ट करते हैं पायोनियर्स. दे आर द फर्स्ट कम्युनिटीज, they are the first plants that colonize rocks, a bare area in ecological succession. वही मैंने बोला, ये ब्रायोफाइट्स जो है ये लाइकन्स के साथ एक्ट करते हैं, कॉलोनाइज करते हैं रॉक्स को. सबसे पहले
रॉक्स को के ऊपर ग्रो होने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो ब्रायोफाइट्स है along with लाइकन्स। तो फिर जब किसी रॉक के ऊपर, ये हमारे पास रॉक है, इस रॉक के ऊपर ब्रायोफाइट्स, खासकर मॉसेस, इसके ऊपर मॉसेस ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब मॉसेस इसके ऊपर ग्रो करते हैं वो उनकी डेथ एंड डिकम्पोजिशन के बाद इसके ऊपर ऑर्गेनिक मैटर जम होता है। थोड़ा बहुत जब ऑर्गेनिक मैटर जम हो जाता है फिर यहाँ पे दूसरे प्लांट्स आ जाते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरे तरह के प्लांट्स इस रॉक के ऊपर ग्रो करते हैं। तो इस तरह जो है ब्रायोफाइट्स जो है, ब्रायोफाइट्स शाबाश एड ऑर्गेनिक मैटर to the surface of rocks, shabash, that favor the growth of higher plants। हमारे पास पहले मैंने आपको बताया कि जो ब्रायोफाइट्स है ये लाइकन्स के साथ पायोनियर्स होते हैं, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉलोनाइज करते हैं एक रॉक के ऊपर ग्रो करते हैं, रॉक को कॉलोनाइज करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये इनकी मौत हो जाती है, ये मर जाते हैं, ये डेड हो जाते हैं। तो इनकी डेथ के बाद ये रॉक्स के ऊपर ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं। वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो फेवर करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। सो वही मैंने आपको बताया, ब्रायोफाइट्स जो है दे आर ऑर्गेनिक मैटर टू द सरफेस ऑफ रॉक्स दैट फेवर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। एक और पॉइंट जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया, हमने पहले डिस्कस किया, जो ब्रायोफाइट्स एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स। मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने आपको बताया है कि ये जो ब्रायोफाइट्स है ये मैट फार्मिंग प्लांट्स है। ब्रायोफाइट्स जो है ये मैट्स बनाते हैं अपने सबस्ट्रेटम के ऊपर। जब कोई मैट किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर ग्रो बनाता है तो उसका मतलब है वो एक्ट करता है एज सॉइल बाइंडर। वही मैंने आपको बताया, सिंस ब्रायोफाइट्स जो है दे फॉर्म मैट्स, ये चादरों की तरह सबस्ट्रेटम के ऊपर ग्रो करते हैं, मैट्स बनाते हैं, तो ये एक्ट करते हैं सॉइल बाइंडर्स। और इस तरह ये क्या करते हैं, एंड दस वेरी गुड, एंड दस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इस तरह ये सॉइल इरोजन होने नहीं देते हैं। तो मैंने आपको बताया जो ब्रायोफाइट्स है दे फॉर्म मैट्स, वी नो दिस, सो दे एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स एंड दस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इस तरह ये सॉइल इरोजन होने नहीं देते हैं। तो हमारा ये है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइट्स की। तो मैंने आपको बताया पहला पॉइंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम समराइज करेंगे। पहला पॉइंट ये है, जो ब्रायोफाइट्स जो है दे एक्ट एज सोर्स ऑफ फूड, दे प्रोवाइड फूड मटेरियल टू सम herbaceous, very good, they provide food materials to some herbaceous mammals, they provide food material to very good birds, they provide food material to some other animals. Bryophytes जो है they act as source of peat. What is peat? Peat is partially decomposed vegetative material. It is brownish in color and it has a lot of water holding capacity. This peat when dried is used as fuel. इसको हम as fuel यूज करते हैं और इस पीट को हम यूज करते हैं फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स, बिकॉज हम जानते हैं इस पीट की जो है काफी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो मैंने आपको तीसरा पॉइंट बताया कि जो ब्रायोफाइट्स है दे एक्ट एज पायोनियर्स, दे आर द फर्स्ट प्लांट्स दैट कॉलोनाइज ए रॉक, दे आर द पायोनियर्स इन इकोलॉजिकल सक्सेशन।
तो जो रॉक के ऊपर जो सक्सेशन होता है उसको हम बोलते हैं जीरो सीर। हम इस इकोलॉजिकल सक्सेशन प्रोसेस हम अपने क्लास 12th में अगले साल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, वहां पे आपको फिर क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। फिलहाल आप याद रखिए ब्रायोफाइट्स जो है दे आर एज पायोनियर्स इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। एंड थर्ड पॉइंट, चौथा पॉइंट मैंने जो आपको बताया, ब्रायोफाइट्स जो है दे आर ऑर्गेनिक मैटर टू द सरफेस ऑफ रॉक्स एंड दस फेवर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। इसी तरह फिफ्थ पॉइंट मैंने आपको बताया, ब्रायोफाइट्स जो है दे एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स एंड दस प्रिवेंट एज सॉइल इरोजन। सॉइल बाइंडर कैसे एक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो ब्रायोफाइट्स जो है दे आर द मैट फार्मिंग प्लांट्स। तो ये हुआ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। नाउ वी विल फोकस ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, classification of bryophytes, classification of bryophytes, bryophytes, classification of bryophytes। हमें आपकी टेक्स्ट एनसीईआरटी की जो बोर्ड टेक्स्ट है उसके हिसाब से हम जाते हैं। जो ब्रायोफाइट्स जो है, ब्रायोफाइट्स जो है as per your text have been broadly classified into two classes. There are two classes of bryophytes. One, we call them as Hepaticopsida. एक हमारे पास क्लास है, उनको हम बोलते हैं हेपेटिकॉप्सिडा। दूसरा उनको हम बोलते हैं ब्रायोप्सिडा। हमारे पास दो क्लासेस है किनके, ब्रायोफाइट्स के। मेरे साथ आप दोहराइए, पहला जो है वो कौन सा है, हेपेटिकॉप्सिडा। दूसरा क्लास जो है उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रायोप्सिडा। वेरी गुड। हेपेटिकॉप्सिडा, ये टेक्स्ट में ये वर्ड नहीं लिखा है, वहां कॉमन नाम लिखा है हेपेटिकॉप्सिडा का। हेपेटिकॉप्सिडा, द मेंबर्स ऑफ हेपेटिकॉप्सिडा दे आर आल्सो कॉल्ड एज लिवरवर्ट्स। इनको हम लिवरवर्ट्स बोलते हैं कॉमनली, because they are commonly called as liverworts because they somehow resemble with the liver. And we are having bryopsida. The members of bryopsida, they are also called as mosses. They are also called as mosses because they form mats on the substratum. That is why they are called as mosses. हमारे टेक्स्ट में यही दो वर्ड्स यूज किए हैं, एक हेपेटिकॉप, एक लिवरवर्ट्स यूज किया गया है, दूसरा मॉसेस यूज किया गया है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो लिवरवर्ट्स है दे आर द मेंबर्स ऑफ क्लास हेपेटिकॉप्सिडा एंड मॉसेस दे आर द मेंबर्स ऑफ क्लास ब्रायोप्सिडा। तो हमें याद रखना है ब्रायोफाइट्स जो है, ब्रायोफाइट्स के दो क्लासेस हैं। एक को हम बोलते हैं हेपेटिकॉप्सिडा, हेपेटिकॉप्सिडा के मेंबर्स को हम बोलते हैं लिवरवर्ट्स कॉमनली। दूसरा हमारे पास है ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा के मेंबर्स को हम मॉसेस बोलते हैं। ये जो दो क्लासेस है, ये जो दो क्लासेस है ब्रायोफाइट्स के, ये डिफर करते हैं। यहां काफी फर्क है स्ट्रक्चर के एतबार से एक दूसरे के बीच। जितने भी मेंबर्स है हेपेटिकॉप्सिडा की या जितने भी लिवरवर्ट्स है उनकी बॉडी डिफरेंट है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ब्रायोप्सिडा और एज कंपेयर टू दैट ऑफ मॉसेस। तो हम चले एक एक करके देखते हैं कि क्या खुसूसियात है लिवरवर्ट्स के और क्या खुसूसियात है मॉसेस के। पहले हम फोकस करेंगे किनके ऊपर, लिवरवर्ट्स के ऊपर हम फोकस करेंगे। लिवरवर्ट्स मैंने आपको पहले बताया दे आर द मेंबर्स ऑफ हेपेटिकॉप्सिडा। दे आर द मेंबर्स ऑफ, मैं पॉइंट यहां पे लिखूंगा, दे आर द मेंबर्स ऑफ हेपेटिकॉप्सिडा। दे आर द मेंबर्स ऑफ हेपेटिकॉप्सिडा। और दूसरा जो है ये कहां पे होते हैं, दे ग्रो
liverworts grow in moist and shady places. Moist and shady places. हमें पता है एल्गी जो थी वो एक्वेटिक थी. एल्गी के बाद आ गए ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स को हमने नाम दिया एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. तो ये लैंड पे पहले प्लांट्स है जिन्होंने लैंड पे ग्रो होना शुरू किया. ये अब डेजर्ट में तो नहीं जाएंगे, ये ऐसे लैंड के ऊपर ग्रो करेंगे जहां पे क्या हो, जहां पे मॉइस्चर हो और जहां पे शेड हो. तभी मैंने आपको बताया ये जो लिवरवर्ट्स है दे ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस. ये मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस कहां पे होते हैं? बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स. आपकी टेक्स्ट में लिखा है बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स पे ये ग्रो करते हैं. बार्क ऑफ ट्रीज पे ये ग्रो करते हैं. बार्क ऑफ ट्रीज पे ये ग्रो करते हैं. ये ग्रो करते हैं डैम्प प्लेसेस पे ये ग्रो करते हैं. ये ग्रो करते हैं डीप इन वुड्स. जंगलों के अंदर भी ये ग्रो करते हैं. याद रखना जितने भी लिवरवर्ट्स है दे आर मेंबर्स ऑफ हेपेटिकॉप्सीडा. दिस पॉइंट इज क्लियर. दे ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं. ये मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस कहां होते हैं? बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स के ऊपर होते हैं. बार्क ऑफ ट्रीज के ऊपर ग्रो करते हैं. डैम्प प्लेसेस के ऊपर ग्रो करते हैं. डीप इन वुड्स में भी ये ग्रो करते हैं. आगे बढ़ते हैं. जो मेन प्लांट बॉडी जो है हमें पता है, शाबाश, द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट्स जो है इज जनरली क्या होती है? शाबाश, वेरी गुड, डॉर्सिवेंट्रल. द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज जनरली डॉर्सिवेंट्रल. Oh, it is flat plant body. मैं आपको यहां पे एक डायग्राम शो कर दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर होगा. ये हमारा एक लिवरवोर्ट है. उस लिवरवोर्ट का नाम मार्कनशिया है. ये एक लिवरवोर्ट. तो इसका जो प्लांट बॉडी है ये फ्लैट है. इसके दो सरफेसेस है. एक ऊपर वाली सरफेस है. उस ऊपर वाली सरफेस को हम बोलते हैं डॉर्सल सरफेस. जो सरफेस हमें दिखती है उसको हम बोलते हैं डॉर्सल सरफेस. जो सरफेस नीचे की तरफ होती है, सॉइल की तरफ होती है, उसको हम बोलते हैं वेंट्रल सरफेस.